جو ہی صبح ہوتی ہے اولاد آدم حصول روزگار کے لیے اپنے اپنے ٹھکانوں سے نکل کر کام کاج میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ کوئی مالک ہے، کوئی ملازم، کوئی چپڑاسی، کوئی افسر، کوئی ریڑھی والا، کوئی تاجر، کوئی کسان تو کوئی مزدور۔ انہی انسانوں میں ایک راولپنڈی میں زندگی بسر کرنے والا بشیر بھی ہے، جو کہ گلاس فیکٹری میں مزدور ہے۔ دمہ کی بیماری ہونے کے باوجود بشیر غربت کے ہاتھوں مجبور صبح اٹھ کر محنت مزدوری کرنے روانہ ہو جاتا ہے۔ حالات کے ہاتھوں مجبور بشیر کی بیوی ساجدہ لوگوں کے گھروں میں صفائی ستھرائی کرتی ہے۔ ان کا ایک بیٹا فیصل بھی ہے۔ دونوں میاں بیوی اپنے بچے کو پڑھا کر اچھی حیثیت دلانا چاہتے ہیں۔ آلو لے لو، پیاز لے لو، ٹماٹر لے لو، کھیرا لے لو، گاجر لے لو، سیب لے لو، چھتری والا کیلا لے لو، بھائی سستا ہو گیا، لے لو چھتری والا کیلا لے لو۔ 5 کلو ہو گیا آلو، بھائی 5 کلو ہو گیا یہ آلو، کیلے کس طرح درجن ہے؟ 140 روپے درجن۔ بھائی کتنے ڈالو؟ لے لو، ٹماٹر لے رہنے لو، دو کھیرا لے لو، گاجر لے لو، سیب لے لو، چھتری والا کیلا لے لو، بھائی سستا ہو گیا۔ ہائے ربا، چھتری والا کیلا لے لو۔ تو نے کتنی سونی سونی چیزیں پیدا کی تاکہ بندے کھا کر تیرا شکر ادا کر سکیں، مگر ان انسانوں نے ہر چیز پر بھاری قیمت لگا کر ہم جیسے غریبوں کے گھروں تک پہنچنے کا نہیں چھوڑا۔ اب تو اتنی مہنگائی ہو گئی ہے، اتنی مہنگائی ہو گئی ہے کہ روٹی کھانا بھی مشکل ہو گیا۔ خیر ہم غریب لوگ کر بھی کیا سکتے ہیں۔ رات کے 9 بج گئے، ابھی تک کدھر تھے؟ بس ساجدہ کیا بتاؤں، آج فیکٹری میں کام زیادہ ہونے کی وجہ سے 2 گھنٹے زیادہ کام کرنا پڑ گیا ہے۔ ویسے ہم مزدوروں کی مالک لوگوں کے سامنے حیثیت کیا ہوتی ہے، جب چاہیں جتنا چاہیں کام کروا لیتے ہیں، اور تنخواہ صرف 9,000 روپے ماہانہ۔ یہ بھی نہیں سوچتے کہ میرے جیسے بیمار بندے کی دوائی پر کتنے پیسے لگ جاتے ہیں۔ 37 سال کی عمر میں ہی دمے کی بیماری نے کسی کام کا نہیں چھوڑا، مگر کیا کروں، محنت مزدوری کروں گا تو گھر کا چولہا جلے گا نا، اور فیصل کو پڑھا لکھا کر بڑا انسان بنتے ہوئے بھی تو دیکھنا ہے نا۔ ہماری تو ساری زندگی محنت مشقت میں گزر رہی ہے، کم از کم ہمارا بیٹا تو ان حالات کا شکار نہ ہو۔ ہاں بشیر، کہتے تو تم ٹھیک ہی ہو، لوگوں کے گھروں میں کام کر کر کے کمر ٹوٹ جاتی ہے، برتن مانج مانج کے ہاتھوں پر زخم پڑ گئے ہیں، مگر مالک لوگوں کے شکوے نہیں ختم ہوتے اور تنخواہ بھی ترسا ترسا کر دیتی ہیں۔ خیر تم چھوڑو، ہاتھ دھو لو، میں نے تمہاری پسند کی مسور کی دال پکائی ہے۔ جیتے رہو بیٹا، میرا بیٹا۔ ابو، آج میڈم نے سائنس کا ٹیسٹ لیا تو میں نے اس میں 100 میں سے 95 نمبر لیے ہیں۔ ہاں ہاں، واہ واہ بیٹا۔ اور ابو پتہ ہے، میڈم نے مجھے شاباش کہا اور کہا میں بہت کامیاب ہوں گا۔ ارے واہ، شاباش بیٹا۔ ساجدہ دیکھنا ایک دن میرا بیٹا پڑھ لکھ کر بڑا آدمی بن جائے گا، پھر میں بھی فخر سے سر اٹھا کر کہوں گا وہ دیکھو میرا افسر بیٹا آ گیا، میرا افسر بیٹا آ گیا۔ اب باپ بیٹا خواب دیکھنا چھوڑو، آؤ کھانا کھا لو، ٹھنڈا ہو رہا ہے۔ اچھا میں ہاتھ دھو کے آتا ہوں۔ ابو میں پانی ڈالتا ہوں۔ جیتے رہو بیٹا،
जीते रहो बेटा। अब्बू आपको हाय, पता है एक तो हमारे बाप बेटा इस स्कूल तरह में घुल मिल 3 जाते झूले भी हैं हैं। जैसे हम पुराने रोजाना दोस्त उधर हों। ब्रेक टाइम झूले चलो लेते अच्छा हैं। है, रब साईं का बड़ा करम है। इसी बहाने फैसल की बाप के साथ गपशप से एक दोस्त की कमी पूरी हो जाती है और बशीर का भी दिल लगा रहता है। साजिदा, जी बीबी जी। मैं शॉपिंग करने जा रही हूँ। सैन की सफाई के बाद किचन के बर्तन और ड्राइंग रूम की सफाई भी करके जाना। सफाई का मतलब सफाई हो, सिर्फ सर से उतारने वाली बात ना हो, समझी? जी बीबी जी। और हाँ, अगर अच्छे तरीके से काम ना किया तो मैं पिछले महीने की तरह तनख्वाह से 500 रुपये काट लूँगी। नहीं नहीं बीबी जी, आप फिक्र ना करें, मैं सारा काम आज ही करके जाऊंगी। ठीक है। चलो ड्राइवर। जी मैडम। बड़े लोगों को खुदा ने मालो दौलत तो बहुत दिया होता है, मगर ये दिल के बहुत छोटे होते हैं। जितना मर्जी काम कर लो फिर भी इनको तसल्ली नहीं होती। रोज़ रोज़ की महंगाई ने जीना हराम कर दिया। पता नहीं घर में आज पकाने के लिए भी कुछ होगा कि नहीं। हाय, ये घर के सामने रश क्यों लगा हुआ है? क्या हुआ है? कोई बताए क्या हुआ? कोई तो मुझे बताए क्या हुआ? आप साजिदा हैं, बशीर अहमद की बीवी? जी। आई एम सॉरी मैडम, आपके हस्बैंड फैक्ट्री में काम कर रहे थे कि अचानक ऊपर से मशीन का हिस्सा खुलकर उनके सर पर आ लगा, जिससे उनकी डेथ हुई है। हाय, मैं मर गई। हाय हाय। हौसला बहन हौसला। ये 15,000 रुपये फैक्ट्री के मालिक परवेज साहब ने दिए हैं, इनसे आप तदफीन का बंदोबस्त कर लें। हाय हाय, मैं मर गई। हाय हाय। उठो ना अब्बू, उठो ना। अम्मी अब्बू नहीं रहे, अब्बू मर गए। बशीर उठ जाओ बशीर, उठो ना। हमारा सहारा कौन था तुम्हारे सिवा? उठ जाओ बशीर, तुम हमें छोड़कर नहीं जा सकते बशीर। उठ जाओ बशीर, उठ जाओ। अभी तो तुमने फैसल को अफसर बनते हुए देखना था। उठ जाओ बशीर, उठ जाओ बशीर। उठो ना, उठो ना, उठो ना। हाय, मेरा सर दर्द से फटा जा रहा है। जब से बशीर गया है जिंदगी ही उजड़ गई। हालात हैं कि दिन ब दिन खराब ही होते जा रहे हैं। बेटा, फैक्ट्री से जो लोग आए थे वो क्या नाम ले रहे थे? परवेज साहब, जो फैक्ट्री के मालिक हैं? हाँ अम्मी। इनके पास उम्मीद लेके चलते हैं। इतने साल बशीर ने इनकी फैक्ट्री में काम किया, शायद कोई इस बात का लिहाज रखकर हमारी इमदाद कर दे। अच्छा, तो जो मेरे आपके बैंक में जो करंट अकाउंट में जो पैसे पड़े हुए हैं उसमें से तकरीबन 5-1 लाख रुपए जो हैं वो अली मिल्स के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दीजिए। अली तनोर मिल वाले? जी 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 वही। ओके सर, मैं ट्रांसफ़र कर देता हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू। शुक्रिया। मैं कमन सर? यस सर, ये बशीर की बीवी है। कौन बशीर? सर, जिसकी डेथ 3 माह पहले फैक्ट्री में सर पर मशीन गिरने से हुई थी।
ओ अच्छा, हाँ बेबी, कैसे आना हुआ? साहब, बशीर के जाने के बाद हमारा दुनिया में सिवाय खुदा की ज़ात के कोई सहारा नहीं रहा। कुछ बचे कुचे पैसे थे, वो भी लग गए। साहब, आपके पास अगर बशीर के कुछ पैसे या हिसाब हो तो हमारे घर का चूल्हा कुछ दिन जल जाता। देखिए मोहतरमा, हमें आपके हस्बैंड की डेथ का बहुत अफसोस है और हमने 15,000 रुपये भी भिजवा दिए थे। हमारी फैक्ट्री में काम करने वालों के लिए इस तरह की कोई पॉलिसी नहीं है कि डेथ के बाद भी हम उनकी फैमिलीज़ को सपोर्ट करें। आप ऐसा करें, ये 500 रुपये रख लें और काम ढूंढ लें। बहुत शुक्रिया साहब, आप ये 500 रुपये भी रख लें। अल्लाह आपको और दे। चलो बेटा। लोग ठीक कहते हैं, लाचार का इस दुनिया में रब की ज़ात के सिवा कोई फुरसाने हाल नहीं। इतना अरसा बशीर ने इनकी फैक्ट्री में मेहनत मजदूरी की, अपनी बीमारी भी नहीं देखी। इसकी मौत भी इन्हीं की फैक्ट्री के हादसे में हुई और आज हालात के हाथों मजबूर होकर मैंने अमदाद की गुजारिश की तो हमें सीधा साधा समझकर सिर्फ 500 रुपये में टालना चाहा। अम्मी, आप फिक्र ना करें, मैं 10 साल का हो गया हूँ। मैं पढ़ाई करके अब्बू का ख्वाब पूरा करूँगा और साथ साथ काम भी करूँगा ताकि तुमको किसी बड़े साहब के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। अम्मी, तुम देखना, मैं बड़ा आदमी बनकर अब्बू का ख्वाब पूरा करूँगा। तुम देखना अम्मी, अब्बू का ख्वाब पूरा करूँगा। जीते रहो बेटा, मेरी दुआ है अल्लाह तुमको हर जगह कामयाब करे। जिंदगी के कठिन हालात में 10 साल के बच्चे ने अपनी मां का सहारा बनकर स्कूल टाइम के बाद एक करियाना स्टोर में काम शुरू कर दिया। वक्त गुजरता गया, जिंदगी के दिन, महीने और साल इसी तरह गुजरते गए। फैसल ने बीए की डिग्री हासिल कर ली, नौकरी के लिए इधर उधर कोशिश की, मगर सिफारिश और लाखों रुपए रिश्वत न होने के बायस फैसल को नौकरी न मिल पाई। मगर जिंदगी के इन मुश्किल हालात में भी फैसल ने हिम्मत न हारी और कुछ पैसे इधर उधर से करा कर अपना एक छोटा सा करियाना स्टोर बना लिया। आज फैसल का छोटा करियाना स्टोर उसकी मेहनत और माँ की दुआओं की बदौलत सुपर स्टोर बन चुका है। फैसल की शादी हो चुकी, उसका एक बच्चा भी है और वो अपनी वालदा और बीवी के साथ सुकून की जिंदगी गुजार रहा है। बस एक बात का अफसोस उसे हमेशा से रहा है कि आज उसका वालिद बशीर जिंदा होता तो बेटे के कारोबार और कामयाबी को देखकर कितना खुश होता। फैसल मोहल्ले के गरीब अफराद से जहाँ तक हो सके इमदाद करता है। मोहल्ले के जिन बच्चों के वालिदैन गुर्बत के बायस उनके तालीमी अखराजात न उठा सकते हों, फैसल उन बच्चों को सपोर्ट करता है और अपनी माली हालत बेहतर होने के बायस किसी भी गरीब के दिल की आज़ारी नहीं करता।